डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ और वह इशू है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुई है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आज हमें ये समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने एक डिसरप्शन लाके खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में जो प्राइसेस हाइक हुई है, सर्ज हुई है, बढ़ी है, वो एक कंसर्निंग इशू है जिसे टैकल किया जाना चाहिए। सो व्हाट आर द रूट कॉजेस? जिसे हम रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कोई गुड्स और सर्विसेज ले जाते हैं कहीं, अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो अगर एक ही रास्ता हो, एक ही रूट हो, तो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर इफ यू सी, जो शीज के रूट से लाई जाती है, चीजें लाई जाती है शिप्स के द्वारा, उन्हें शिपमेंट कहते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड कहते हैं, तो जो शिपमेंट है, जो देयर वाज ओनली वन रूट दैट हैज बीन ब्लॉक्ड। एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गल्फ कंट्रीज? व्हाई हैव दे ब्लॉक्ड दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? को क्यों ब्लॉक किया? टुडे यू मस्ट explain your children also that why these situations are taking place, क्यों हो रहा है, what are the reasons, what are the facts, and just not only count upon the rumors, just try to figure out what are the facts behind this crisis. The fact is quite clear, बहुत clear है, that is the struggle, the hegemony, the kind of occupation, taking control over other territorial properties, or this is a human tendency of that is not different from animals. This is similar to the animals. Animals क्या करते हैं? जानवर, they practice territoriality. They are very afraid that somebody would attack them, and therefore they respond to that manner to safeguard themselves, to safeguard their existence. So now humans' approach is just similar to the animals. So those countries that are powerful countries, they are very powerful in terms of resources, in terms of political setup, in terms of all the technology as well. तो ये जो countries है ना, these countries ये hegemony establish करने की कोशिश करते हैं. This is not the issue of today. Right from the First World War, after the in the Second World War, if you see, अगर आप देखें तो ये practices already हो चुकी हैं. और अब जो है, there is a see, one country is afraid of losing its power. So it wants to occupy, it wants to take control of others' territory. This is territorial disputes. And let me frankly tell you that today, this territoriality of the animal instinct is present in human being. So human beings are very afraid. Any country is very much afraid that others will occupy, others will take over. They will have more influence. They will have more resources. So what they do actually, they impose tariffs. They start doing something for their benefit, irrespective of their approach of humanism. और अगर देखें तो ये quite ridiculous है, जहाँ पे humanism नहीं, there is a bargain, there is no negotiations. So bargain is taking place under the pretense of negotiations. Negotiations के बहाने पर बार्गेनिंग हो रही है।
और ये जो बार्गेनिंग है बहुत डेंजरस है। इससे जो वर्ल्ड का हेल्थ है वो बुरी तरह से डैमेज हो रहा है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। So many rumors or disputes के through, I don't know the fact behind that, China has captured, the territory of India and shown it, reflected it its own territory as its own territory. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि I should dig the fact to check whether it is right or wrong. I should be able to understand and you should be able to understand. अगर आपको फैक्ट पता नहीं है, why is something happening and what is happening around you and why is that happening, तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे, क्या सिखाओगे? वो भी डिस्प्यूट पर भरोसा करेंगे, वो भी फैक्ट चेकिंग नहीं करेंगे, किसी ने जो बता दिया वही मानेंगे। क्या इसलिए एजुकेशन दिलाएगा? एजुकेशन का पर्पस है ह्यूमन को पेन से बाहर निकालना, to take the humanity out of the pain, to liberate the humanity of the evils, of the bad practices. So global situation, क्यों? I would like to talk about global situation because you are impacted. The cost of the petrol is rising. The cost and price of the CNG is rising. The LPG is rising. So it is not because of this country. Let me tell you, this is because of global impact. We are not living in one particular place, we are global. जिसे कहते हैं सिंपल ग्लोबल विलेज। आज हम एक प्लेस के सिटीजन नहीं है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल सिचुएशंस को, उन इम्प्लीकेशंस को और उन सैंक्शंस का जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारे और हमारे बच्चों पर भी हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, teach your children that what are the facts. Facts are that Strait of Hormuz को ब्लॉक कर दिया है। And what are the facts behind that? The facts are that the Gulf countries, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वेस्ट एशिया, वो मिडिल ईस्ट जिसे लाइक सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज, बहरीन, ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज हैं ये गल्फ कंट्रीज हैं। और ये गल्फ कंट्रीज एक्चुअली व्हाई दे आर डूइंग दैट, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट इजराइल विल अटैक एंड इन्वेड ऑन देयर ऑयल रिजर्व्स, ऑन देयर nuclear facilities. That's why they have stopped the supply. And of course they are being actually hampered, they are facing the financial impositions, they are facing those financial constraints. उनको बहुत नुकसान भी हो रहा है, but they want to first of all ensure that others cannot occupy, cannot attack and destroy their oil reserves. That is their GDP. That is their soul of the economy of their country. And these countries are frankly counting on these resources, oil reserves. So if I am specifically talking about India. India is deeply impacted if anything happens. Any country is deeply impacted, but let me talk about India. Why India is impacted? Because India is importing 60% of oil from Gulf countries, which I mentioned earlier, जो मैंने आपको बताया। और वो 60% जो ऑयल रिसोर्सेस हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं उस रूट से जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से आते हैं। और ना केवल वहां से इंडिया के लिए आते हैं, बल्कि 50% जो सप्लाई है ऑयल्स की दुनिया को, एनर्जी की, और उसमें जो एनर्जी सप्लाई है क्या क्या है उसमें मैं आपको बता दूं। पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलएनजी है और एलपीजी। और 60% जो इंडिया का जो ये रिसोर्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वहां से, ये एनर्जी वहां से
इम्पैक्ट कहाँ है? इम्पैक्ट दैट इज क्वाइट क्लियर कि जो हमारे ऑटो रिक्शास हैं, बहुत सारे लोग वो ऑटो रिक्शा से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ी। बहुत सारे लोग बसेस में भी यूज होता है सीएनजी हमारे इंडिया में स्पेशली। और जो गैसेस हैं और जो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास रिफाइनरीज हैं, हमारे पास ऑयल का कोई रिजर्व नहीं है, रिफाइनरीज हैं। हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जिसको रिफाइन नहीं किया गया अभी, उस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करके सप्लाई करते हैं विद इन द कंट्री। सो थैंक गॉड कि इंडिया के पास 60 डेज का रिजर्व्स है अभी ऑयल। अभी फैक्ट्रीज को ये गाइडलाइंस दी गई हैं और उनको ये कहा गया है, दे वर आस्क्ड टू एक्चुअली produce the gases that specifically LPG that is going to be a problem. Certainly the surge is there, the prices have risen, of course they have risen because of not the India but because of global impact, because of Gulf countries, and not only just because of Gulf countries but also because of the escalation, because of the confrontation that is not happening from one day. एक दिन से नहीं हो रहा, बहुत दिनों से उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। और जब वो ये थ्रेटन करते हैं कि इफ यू अटैक ऑन माय न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करोगे, जब कभी हमारे ऑयल रिजर्व से आप अटैक करोगे तो हम सप्लाई रोक देंगे। तो अगर सेंस ऑफ मोरालिटी उन कंट्रीज में होती, अगर उनमें ईगो और एरोगेंस नहीं होता, तो अभी तक वो बोल देते कि आप तो शुरू करो, हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको यहां से हटाते हैं। अब हमारे बीच में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, एस्केलेशन नहीं। These countries are not actually interested to safeguard the humanity. Let me be very very frank. आप देख लें WHO को देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, जो दुनिया में सेफ्टी मेजर्स को प्रिडिक्ट भी करता है और सिक्योर भी करने की गारंटी है, उनकी बातों तक को कंट्रीज ने नहीं माना, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। और अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सेटअप किया गया था कि वो पीस रेजोल्यूशन के लिए अटेम्प्ट करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे, जो कंट्रीज किसी कैटास्ट्रोफी से, आपदा से, डिजास्टरस सिचुएशन से को फेस करें, मेडिकल एड WHO प्रोवाइड करेंगे और वो पीस को रिस्टोर करेंगे, पीस को प्रोपोगेट करेंगे और एक गाइडलाइन बनाएंगे, बट दे वर डिनाइड। दिस इज नॉन कंप्लायंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। एंड द टेरिटोरियलिटी, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल का जो इंस्टिंक्ट है वो है टेरिटोरियलिटी। उसकी टेरिटरी में if somebody enters, if some other animals enters, it attacks because the animal is afraid of other being, either it hides or attacks. And this is quite emerging trend in the human being these days. Let me tell you, sorry for that, but please notice these things if you have time. आप नोटिस करिए आज इंसान में क्या हो गया। इंसान किसी कंट्री को किसी से कोई लेना देना नहीं। सी दी वर्ल्ड अक्रॉस, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमैनिटी, दे आर जस्ट ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर मनी, अबाउट देयर प्रॉफिट, अबाउट देयर ट्रेड, बिजनेस, थ्रू सैंक्शंस, थ्रू टैरिफ्स, थ्रू अदर इम्पोजिशंस। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है दुनिया की। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो ब्लॉक हुआ है, ये उन situations में actually under those situations there where the deprivation that caused, people are not able to use resources just because of these confrontations and escalations. And this country would not, they are not sensitive country at all. They are propagating hegemony. They want to fulfill their animal instinct. So the animal instinct is quite very prevalent in these countries. Please try to understand.
And therefore, if you see, negotiation is not falling into the place, and it has been going on for a long time. बहुत दिनों से चल रहा है कि negotiations हो जाएंगे, अब तो cease fire हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हो भी नहीं रहा. Nothing is being actually coming into the place. So that's why it is a great problem, and it's a great, loss for the humanity. Thank you so much, friends. कुछ डिस्टर्बेंस के कारण ये लोकल प्लेस है, कोई कुछ भी शुरू हो जाता है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वुड एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपने बच्चों को भी बताएं. आज दुनिया को समझना जरूरी है, चीजें क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे.